कैसे हैं आप? आज हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। रेडी, स्टडी, स्टार्ट। Look at the pictures below. You can see some seeds of different colors, shapes and sizes. Identify the seeds and write the names of the seeds you know in the space provided. ये आप खुद करेंगे। Concepts to know: reproduction from seeds, reproduction from other parts, dispersal and its agents, crops and agriculture. आज हम पढ़ेंगे living organisms produce their own kind through the process called reproduction. Plants also increase a number through the process of reproduction. Thus, reproduction becomes an important process for the continuity of life on the earth. Okay, living organisms जो होते हैं वो अपने ही जैसा एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं। ऐसा यूजुअली एनिमल्स करते हैं, जिसकी वजह से लाइफ जो है इजीली चलती रहती है अर्थ पे। Reproduction in plants is important for animals and human beings also. Different plants reproduce in different ways. Plants reproduce either through seeds or other plants parts like leaves, roots and stem. Reproduction in plants can be broadly categorized into two types. 1. Sexual reproduction. 2. Vegetative propagation. Okay. रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स की जो रिप्रोडक्शन होती है वो एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती है। जो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स है वो डिफरेंट वेज के होते हैं। ये जो है टू टाइप्स में कैटेगराइज्ड है, वन है सेक्सुअल एंड सेकंड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्लांट रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। जब सीड से पौधा उग के आता है तो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम अदर प्लांट पार्ट्स। ओके, जब प्लांट के ही पार्ट से कोई प्लांट उग के आता है तो उसे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। रूट्स, स्टेम, लीव्स, ये तीनों ही वेजिटेटिव प्रोपगेशन का पार्ट है। लेट्स स्टडी अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन डिटेल। ओके, आइए इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स bear flowers. These flowers change into fruits. Fruits carry seeds inside them. It is shed which gives rise to a new plant. A seed grows into a baby plant. It is the seed which gives rise to a new plant. Okay. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो होते हैं वो फ्लावर ग्रो करते हैं। ओके, जो फ्लावर है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। जो फ्रूट है उसमें सीड होती है, फिर वो जो सीड है वो एक न्यू प्लांट को ग्रो करती है। अ सीड ग्रोज इनटू अ बेबी प्लांट when it is sown into the right type of soil and receives sufficient amount of water, air and warmth. Again, जो सीड है अगर उसे सही जगह पे सही तरीके की सॉइल में उगाया जाए और वाटर, सनलाइट और एयर मिले तो वो इजीली ग्रो कर जाती है। दिस बेबी प्लांट इज कॉल्ड अ सीडलिंग। इस बेबी प्लांट को हम सीडलिंग कहते हैं। This process by which a seed develops into a seedling is called germination. इस प्रोसेस को हम कहते हैं germination, जिसमें बेबी सीड ग्रो करती है एक प्लांट में। The plants produce a lot of seeds. However, not all the seeds germinate. Some are destroyed by rain and wind. Some are eaten by insects and birds, while some do not get the right conditions to grow. Let's understand the structure of a seed. Okay, जो seeds होती हैं वो हर जो seed होती है वो produce नहीं कर पाती है। कई seeds ऐसी होती है जिनको right climate नहीं मिलता, right soil नहीं मिलती। कई seeds ऐसी होती है जिन्हें insects या फिर animals खा जाते हैं तो वो उग नहीं पाती। चलिए आइए इसके structure के बारे में जानते हैं। Structure of a seed. A seed has an outer skin-like covering known as the seed coat. It is slightly swollen and protects the baby plant inside the seed. Inside a seed is a baby plant called an embryo. ये जो सीड होती है इसका जो आउटर कवर होता है उसको हम सीड कोट कहते हैं। ये जो सीड कोट होता है स्वॉलन होता है और ये प्रोटेक्ट करता है उस बेबी सीड को बाहर की किसी भी चीज से। Inside a seed is a baby plant called embryo. जो बेबी प्लांट अंदर होता है उसे embryo कहते हैं। It grows into a new plant. Small leaves, also called cotyledons, store food for the embryo. Seeds of some plants like beans, peas and grams have two cotyledons. Such seeds are called dicot seeds. On the other hand, the seeds of some plants such as wheat, maize and rice have only one cotyledon. Therefore, they are called monocot seeds. Okay.
जो स्मॉल लीव्स होती हैं सीड्स की उन्हें हम कोटिलेडन्स कहते हैं। कुछ ऐसी सीड्स भी होती हैं जैसे कि पीज, बीन्स, ये सब क्या होती हैं, कोटिलेडन्स होती हैं। इनको डिकॉट सीड्स भी बोलते हैं। और दूसरी सीड्स जैसे कि मेज, राइस, व्हीट, ये सब भी कोटिलेडन्स होती हैं, लेकिन इन्हें हम मोनोकोट सीड्स बोलते हैं। जर्मिनेशन। Germination is defined as the process by which a seed starts to grow. It is not a single step process. A seed goes through a number of stages before growing into an adult plant. These stages are as follows. Okay, germination वो process होता है जिसमें एक seed plant बनती है। इस पूरे प्रोसेस को, ये एक प्रोसेस बहुत लंबा प्रोसेस होता है और इसमें जो छोटा सीड है वो एक एडल्ट प्लांट बन जाता है। इसका एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, आइए पढ़ते हैं उसको। अ सीड इज सोन इन द सॉइल एंड इट इज वाटर्ड डेली. इट रिमेन्स मॉइस्ट सो दैट द सीड कोट कैन बी ब्रोकन इजीली. इट गेट्स एयर फ्रॉम द एटमोस्फेयर एंड वार्मथ फ्रॉम द सन. The seed absorb water and swells until the coat becomes smooth. See, सबसे पहले सीड को सॉइल में डाला जाता है, फिर उस पर हल्का सा पानी डाला जाता है। वो पानी से उसको मॉइस्चर मिलता है और उस मॉइस्चर की वजह से कुछ दिनों में वो स्वॉल मतलब कि सूजता है। धीरे धीरे उसकी जो आउटर कोटिंग है वो खुलती है। The cells of the embryo start dividing and multiplying as they get water, air and nutrients. As a result, the baby plant inside the seed grows in size. This results in breaking of the seed coat. See, जो सेल्स होते हैं एम्ब्रोयो के वो डिवाइड होने स्टार्ट हो जाते हैं जब वो स्वेलो करता है। तो उसकी वजह से जब उसको प्रॉपर वाटर, एयर और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो इजीली जो सीड कोट है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। The root started growing in the downward direction and is called the radicle. जो रूट्स हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं, इस प्रोसेस को हम रेडिकल कहते हैं। देन द बेबी शूट कॉल्ड प्लूम्यूल बिगिंस टू ग्रो इन द अपवर्ड डायरेक्शन. और जो स्टेम है, स्टेम जो उगनी शुरू होती है, पहले वो स्टेम नहीं कहलाती, वो प्लूम्यूल कहलाती है, वो उगना शुरू हो जाती है। द कोटिलेडन प्रोवाइड्स फूड इन द एम्ब्रायो. जो कोटिलेडन है वो एम्ब्रायो में फूड प्रोवाइड करता है। वंस द लीव्स आर फॉर्म्ड द कोटिलेडन्स आर शेड. जैसे ही लीव्स बनने शुरू होते हैं कोटिलेडन्स शेड कर जाते हैं। अ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम द सीड. फिर एक न्यू प्लांट सीड से उग के आता है। Some seeds grow very close to each other and to the parent plant. Such seeds compete with each other for the available water and nutrients. As a result, only a few of them survive while the rest starve and die. See, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही आसपास उग जाते हैं। आसपास उगने की वजह से वो जो है वो सरवाइव नहीं कर पाते क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट, एयर एंड सनलाइट नहीं मिल पाता, इस वजह से वो मर जाते हैं। To aid survival, plants take help of agents like explosion, wind, water and animals to scatter their seeds. These agents carry the plant seeds and scatter them away. This process is called seed dispersal. सीड्स अपने सर्वाइवल के लिए हेल्प लेती है कुछ एजेंट्स का, जैसे कि एक्सप्लोजन, विंड, वाटर या फिर एनिमल्स। ये इनसे स्कैटर होने के लिए इनकी हेल्प लेती है। इस प्रोसेस को हम सीड डिस्पर्सल भी कहते हैं। क्रेजी फॉर एक्टिविटी, यस। ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जर्व जर्मिनेशन ऑफ फूड. व्हाट यू नीड? ग्राम सीड्स, अ बाउल, कॉटन, वाटर. व्हाट टू डू? स्प्रेड द कॉटन इन द बाउल एंड ऐड वाटर ओनली टू soak the cotton. Now put the gram seeds in it and keep the bowl near a window where they get air and sunlight. Observation. After 2 to 3 days, you will observe baby plant growing out of it. Remove the outer shell and cotyledons. We can see the baby plant looks from inside. Conclusion. In the process of germination, radicle grows first and then the plumule. ओके ये आप खुद करेंगे। द कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशंस आर, जर्मिनेशन के लिए जो कंडीशन नेसेसरी होती हैं वो हैं, द जर्मिनेटिंग सीड नीड्स एयर टू ब्रीथ. जर्मिनेटिंग सीड को एयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. अ सीड नीड्स वाटर टू मेक इट सीड कोट सॉफ्टर. वाटर हेल्प्स द बेबी प्लांट टू ब्रेक द सीड ओपन एंड कम आउट. ओके, वाटर की वजह से जो सीड है, उसका जो सीड कोट है वो इजीली ब्रेक हो जाता है. द सेल्स
of the seed also require warmth from the sun to become active. Okay, sun rays भी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं जिसकी वजह से cells active होते हैं. Crazy for activity? Yes. Study the pictures given below carefully. Which of these seeds will germinate? Explain why. ये आप खुद से करेंगे. Dispersal and its agents. Wind, water and animals help in seed dispersal. In order to prevent overcrowding and competition for air, water and nutrients, seed need to be dispersed away from the parent plant. The process of carrying seeds away from the parent plant is called dispersal. Okay, wind, water और animals seed को disperse होने में help करती है. Parent plant के साथ रहकर ये overcrowd कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें डिस्पर्स होना पड़ता है. इस पूरे प्रोसेस को कि सीड बेबी प्लांट जो होता है वो पेरेंट प्लांट से अलग हो जाए, इस प्रोसेस को हम डिस्पर्सल कहते हैं. सम सीड्स इन पोड्स आर डिस्पर्स्ड व्हेन द पोड्स एक्सप्लोडेड. लेट्स लर्न हाउ सीड डिस्पर्स अकर्स इन डिफरेंट प्लांट्स. डिफरेंट प्लांट्स में सीड कैसे डिस्पर्स होती है ये हम पढ़ते हैं. Wind carries the seeds which are very light and heavy special features like wings or hair. विंड्स उन सीड्स को कैरी करती हैं जिनके बहुत स्पेशल फीचर्स होते हैं जैसे कि विंग्स और हेयर. कॉटन सीड्स हैव अ स्मॉल फ्लफ अराउंड देम. द सीड्स ऑफ डैंडरलाइन एंड स्कैमोर आर वेरी लाइट. दे हैव आइदर विंग्स और हेयर विच एक्ट एज पैराशूट्स. सीड्स ऑफ मैपल ऑन द अदर हैंड आर विंग. कॉटन की बहुत स्मॉल सीड्स होती हैं. डैंडरलाइन, स्कैमोर ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी होते हैं. इनके फ्लफ़ी या लाइट वेट होने की वजह से विंड इनको ईजिली कैरी करके ले जाती है. वाटर. प्लांट्स लाइक लोटस, कोकोनट, लिली एंड मैनग्रोव ग्रो नियर और इन वाटर. देयर सीड्स और फ्रूट्स आर आइदर स्पॉन्जी और फाइब्रस. दिस enables them to float on water. Water carries them to different places to aid their dispersal. Okay, plants जो water में रहते हैं जैसे कि लोटस, कोकोनट, लिली, मैनग्रोव ये water के आसपास ही उगते हैं. इनकी जो seeds होती हैं, fruits होते हैं वो बहुत ज़्यादा spongy होते हैं. इनमें water होता है हल्का हल्का और ये water पे ही float करते हैं. Animals. Human beings and animals enjoy eating fleshy fruits like apples and mangoes. They throw away their seeds in different places. These seeds germinate on getting appropriate conditions for growth. Similarly, birds eat fruit and swallow their seeds. Okay. ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स कई बार ऐसे फ्रूट्स खाते हैं, फ्लैशी फ्रूट्स जैसे कि मैंगो या फिर एप्पल्स, तो वो उनकी जो सीड्स होती हैं वो कहीं ना कहीं फेंक देते हैं. अगर उन्हें बेटर क्लाइमेटिक कंडीशंस और सॉइल मिल जाता है तो वो जो सीड है वो ग्रो कर जाती है. द अनडाइजेस्टेड सीड्स कम आउट इन द फेसेस एंड जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट. इसी तरीके से बर्ड्स फ्रूट्स खा लेती हैं और सीड्स को फेंक देती हैं, तो वो जो सीड्स होती हैं वो कहीं ना कहीं जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट्स बन जाता है. Animals often serve as seed carriers. Some seeds have hooks, hairs, bristles or spines and are transported by sticking on the fur of animals or on the clothing of human beings. These seeds of plants like coluber, burdock and datura have hooks. These get transported to different places by sticking to the fur of animals or even to the clothes of human beings. Okay. कुछ सीड्स ऐसी भी होती हैं जो कि बहुत छोटी होती हैं जैसे कि कोकलबार, बर्डक, डटूरा. ये इतनी छोटी होती हैं कि किसी भी बर्ड के फर में या फिर ह्यूमन के क्लोथ्स में अटक के एक प्लेस से दूसरी प्लेस चली जाती हैं. एक्सप्लोजन. Some fruits scatter their seeds by explosion on ripening. The pod dries, bursts open and forcibly scatters the seed in all direction away from the parent plant. Peas, beans and ladyfinger seeds are dispersed by this method. Okay, see, कुछ fruits ऐसे होते हैं जो कि उगने के बाद उनकी जो सीड्स हैं उनके प्रॉपर उगने के बाद उनसे डिस्पर्स होती हैं. उनका एग्जाम्पल है जैसे कि पीस, बीन्स या फिर लेडी फिंगर. क्रेजी फॉर एक्टिविटी. यस. रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स एंड गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. ये आप खुद से करेंगे. रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर पार्ट्स.
Plants can also grow from other parts of stem, roots and leaves besides seeds. Okay, seeds के अलावा जो plants है बाकी जो उनके parts होते हैं उससे भी grow कर सकते हैं, जैसे कि roots, stem, leaves. This process of growing plants from plant parts other than the seed is called vegetative propagation. इस पूरे process को जिसमें plant खुद के ही part से grow करता है इसको vegetative propagation कहते हैं. Some plants are grown from the pieces of their stems known as stem cutting. Plants like rose, hibiscus, caloes and sugarcane are examples of such plants that are grown from stem cuttings. Plants like ginger and potato are grown from the underground stems. These plants have thick and fleshy underground stems because they store food in them. Okay. कुछ प्लांट्स जैसे कि रोज, हिबिस्कस, केलोइस या शुगर केन ये ऐसे प्लांट्स हैं जो अपनी ही स्टेम से रीग्रो कर सकते हैं और कुछ प्लांट्स जैसे कि जिंजर या फिर पोटैटो ये बहुत फ्लैशी प्लांट्स होते हैं. ये भी अपने प्लांट से इनमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है तो ये इजीली ग्रो कर जाते हैं. न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द बर्ड्स प्रेजेंट ऑन देम व्हेन केप्ट इन द मोस्ट सॉइल एंड बेगोनिया एंड ब्रायोफिलम grow from leaves. Leaves of some plants bear buds on them. These buds give rise to new plants when they are placed in the moist soil. Bryophyllum reproduces by this method. Okay. कुछ plants ऐसे भी होते हैं जो कि moist soil से उगते हैं. फॉर एग्जाम्पल बेगोनिया या फिर ब्रायोफिलम वो लीव्स के थ्रू उगते हैं. इसमें प्रोसेस बता रखा है. इस पूरे प्रोसेस को ये रिप्रोड्यूस होते हैं. ब्रायोफिलम जो है वो रिप्रोड्यूस होते हैं इस मेथड के थ्रू. Some roots develop into a new plant when kept in the moist soil and sufficient amount of warmth and air. Sweet potato and carrot are example of such plants. कुछ roots ऐसे होते हैं जो कि एज अ प्लांट उगते हैं. ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? वो है पोटैटो या फिर स्वीट पोटैटो, कैरेट. ये रूट्स होती हैं जो हम खाते हैं. Crazy for activity. Objective: to grow a plant from its stem. What to do? Cut a small portion of money plant stem, place it in the bottle of water, keep the bottle in the sunlight. Observation: you will observe roots developing from the stem within a week. ये आप खुद से करेंगे. Crop and agriculture. Plants provide food, oxygen, medicine and timber to us. We grow plants on a large scale so that we can get enough products to fulfill our needs. Plants which are grown in a large area to provide food and serve other purposes are called crop. Plants हमें ऑक्सीजन देते हैं, फूड देते हैं, मेडिसिन देते हैं, टिम्बर देते हैं. जो प्लांट्स जो हैं वो हम एक लार्ज स्केल में उगाते हैं ताकि हम अपनी नीड्स को पूरा कर सकें. प्लांट्स हमें बहुत सारी चीज़ें हमें फुलफिल करते हैं जैसे कि क्रॉप्स जो खाना हम खाते हैं. दिस प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर ऑब्टेनिंग फूड प्रोडक्ट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. द पर्टिकुलर एरिया इन विच अ क्रॉप इज ग्रोन इज कॉल्ड अ फार्म एंड द पर्सन हु वर्क्स ऑन अ फार्म इज नोन एज अ फार्मर. ओके, ये जो पूरा प्रोसेस है क्रॉप्स वगैरह उगाने का, फूड के लिए काम करने का, इसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं. और ये जो यहाँ पे होता है उसको हम फार्म कहते हैं और जो ये करता है उसको हम फार्मर कहते हैं. While growing a particular crop, the following points should be kept in mind. एक क्रॉप उगाने के लिए हमें नीचे दी गई चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जैसे कि different crops grow in different seasons. Kharif crops like rice and maize are grown in summer to June to October. Rabi crops like wheat and gram are grown in winter from November to April. Thus, it is important to sow right seeds in the right season. Okay. जो अलग अलग क्रॉप्स होते हैं वो अलग अलग सीजन में उगते हैं. फॉर एग्जाम्पल खारिफ क्रॉप्स में आता है आपका राइस और मेज़. ये जो है समर में उगते हैं जून टू अक्टूबर. फिर आता है आपका राबी क्रॉप्स होते हैं वीट या फिर कोई भी ग्राम. ये उगते हैं विंटर्स में नवंबर टू अप्रैल. Good quality seeds should be used to obtain good and healthy crops. Good और healthy crops के लिए हमें good quality की seeds use करनी चाहिए. Seeds should be sown in the right type of soil to ensure maximum production of crops. सही तरीके की मिट्टी में seeds को उगाना चाहिए ताकि हमें proper production मिले.
The field where a crop is growing should be properly irrigated, watered, otherwise the crop may dry up and die. Okay, वो फील्ड, वो फार्म जहाँ पे आप क्रॉप्स उगा रहे हैं वो प्रॉपरली इरिगेटेड होनी चाहिए, उन्हें प्रॉपर वाटर देना चाहिए, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर प्रोडक्शन मिले और पौधे जो है वो मरे ना. The crop is prone to damage by pests, birds, grazing animals and diseases. It can be protected in the following way. Crops damage हो सकते हैं पेस्ट मतलब कि इंसेक्ट से या फिर बर्ड से या फिर एनिमल से, उन्हें डिजीज़ भी लग सकती है. उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमें फॉलोइंग वेज यूज़ करने चाहिए, जो कि हैं केमिकल्स कॉल्ड इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स शुड बी स्प्रेड टू अवॉइड पेस्ट्स. ओके, पेस्ट से बचाने के लिए हमें केमिकल्स जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स या फिर पेस्टिसाइड्स इनका यूज़ करना चाहिए. प्रॉपर फेंसिंग शुड बी डन अराउंड द फार्म. फार्म के अराउंड प्रॉपर फेंसिंग होनी चाहिए. Scarecrows should be used to scare away birds and grazing animals. जो फार्म में एक क्रोस को भगाने के लिए एक आदमी को खड़ा कर देते हैं या आदमी जैसा स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं, उसको बोलते हैं स्केयरक्रोस. उन्हें रखना चाहिए ताकि क्रोज ना आए. द हार्वेस्टेड क्रॉप शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली इन सील्ड कंटेनर्स. जो भी प्रोडक्शन हुई है और उसका हार्वेस्ट हुआ है, वो हार्वेस्टेड क्रॉप्स जो हैं वो उसे प्रॉपरली सील्ड कंटेनर्स में ही स्टोर करके रखना चाहिए. रीड एट अ ग्लैंस. न्यू प्लांट्स मोस्टली अराइज फ्रॉम सीड्स. Air, water and warmth are the necessary conditions for seeds to germinate. Agents of seed dispersal are wind, water, animals and explosion. A seed consists of a seed coat, cotyledons or the seed leaves of a baby plant. A seed germinate in our 4 stages. A plant scatters its seed with the help of certain agents so that they do not grow too close to each other and to the parent plant. Wind, water, animal and explosion are agents that help in dispersal of seeds. New plants can be grown vegetatively from stems, roots and leaves. Different crops are grown in different seasons. In India, 2 types of grown, Kharif and Rabi crops. Key terms to learn. Seed. Tiny life support package formed inside a fruit that can give rise to a new plant. Seedling, baby plant. Germination. The process by which a seed develops into a seedling. Seed coat. Outer skin like covering on seed. Cotyledon. Thick part of the seed that provides food in the baby plant. Dispersal. Scattering of seeds away from the parent plant. Agriculture. The practice of growing plants on a large scale for food products. Farm. The particular area in which a crop is grown. Rabi crops. Crops grown in winters. Kharif crops. Crops grown in summers. Vegetative propagation. Reproduction from any part of body of a plant अदर देन सीड. आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा. अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज आप खुद करेंगे.